اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 14 صفر 1442 ہجری، 15 صفر 1442 ہجری، 3 اکتوبر 2020 عیسوی، 16 گتے آسن 2077 بکرمی، شنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا لائیو پروگرام یعنی سوال و جواب کا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ایک رمضان المبارک سے شروع ہو کر اب تک رواں دواں ہیں، اور آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ڈیلی 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو جانکاری نہیں ہے تو جانکار لوگوں سے پوچھ لو۔ اسی آیت کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو وہ ڈائریکٹ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر وہی پرانا نمبر ہے، 041 590 329 041، یعنی موبائل میں پورا لکھنا پڑے گا، 041 590 239۔ یہ لکھیں گے تو ہم سے بات ہو سکے گی۔ اور باہر سے، نیپال سے باہر سے آپ 000977 پھر اس کے بعد 41 590 239 ڈائل کریں گے تو ہم سے جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی طریقے سے یہ پروگرام 2 فیس بک پر لائیو پیش کیا جا رہا ہے، ایک جنک نندنی FM، اس پر آپ ہمیں صرف سن سکتے ہیں، اور دوسرا NID آپ سرچ کریں گے تو اس میں ہم لائیو ہیں، اور وہاں آپ اپنے سوالات بھی لکھ کر پیش کر سکتے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب تک کسی کا کال نہیں آ رہا ہے تو فیس بک پر بھی سوالات آتے ہیں، بہت سارے بھائی جڑے ہیں، اور کچھ سوالات ہمارے پاس پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم ساتھیو، آپ کا سوال کرنا گویا کہ آپ خود فائدہ حاصل کریں گے اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لہٰذا آپ سوال کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ فیس بک پر عبدالرازق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہاں، کون؟ سویلا سے کہیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سلام پھرلا کے بعد ہاں، اچھا، نام کیا ہے؟
अच्छा अच्छा। ये सबैला से एक बहन थी, पहली कॉलर, पहला सवाल करने वाली। इससे पहले भी एक बार सवाल की थी। इनका सवाल है कि जब आखिरी तशहुद में बैठते हैं, आखिरी नमाज के आखिरी जलसा में बैठते हैं और सिर्फ दरूद ही पढ़ के धोखा से सलाम फेर देते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो हाँ, नमाज हो जाएगी आपकी। तहियात और दरूद अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे उलमा के नज़दीक आपकी नमाज हो जाएगी। और आप को भूल चूक हुई है, भूल से छोड़ दिए हैं। वैसे कुछ उलमा कहते हैं कि 4 चीज़ों से पनाह मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वगैरह ये। लेकिन आपने तहियात और दरूद पढ़ ली तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर भूल से आप उठ गए या सलाम फेर दिए तो आपकी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये अब्दुल राज़िक साहब सलाम किए हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कर हरलाखी से। मोहम्मद सगीर साहब फेसबुक NID पर जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल राज़िक सवाल करते हैं कि गैर मुस्लिम के मैयत को कंधा देना कैसा है? वहाँ उनको कंधा देने वाले बहुत हैं, लेकिन अगर गैर मुस्लिम को कंधा देने वाला कोई नहीं है, मुसलमान के गांव में मर गया है और कोई उसको उसके मजहब वाले नहीं हैं, तो मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो उसका जो है अंतिम संस्कार करे, उसको कफन दफन करे। लेकिन जलाना जायज़ नहीं है, इसलिए कि किसी भी धर्म में जलाना जायज़ नहीं है। तो इस बात को याद रखें। मेरे मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? यानी हॉस्पिटल में आपने पेशेंट दिया और उसका कमीशन आपको मिल रहा है, तो कमीशन लेना जायज़ है कि नहीं? अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, हाँ कहिए। अच्छा अच्छा, ठीक। वालेकुम। इनका ये कटैया से रिजवान साहब, ये हमेशा माशाअल्लाह सुनते रहते हैं प्रोग्राम और सवालात भी करते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इनका पहला सवाल आया कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो मरीज़ देते हैं और हॉस्पिटल वाले उसको कमीशन देते हैं, तो ये कमीशन जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो ये बड़ा गाढ़ा और बड़ा मुश्किल सवाल है। यहाँ मैं अब इज्तिहाद के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर ये हॉस्पिटल वाला मुकर्रर किया हो कि कोई भी आदमी पेशेंट लाएगा, हम अपनी तरफ से बख्शिश देंगे, उस मरीज़ के पैसों से काट करके नहीं, बल्कि हॉस्पिटल की तरफ से हम उसको बख्शिश देंगे कि भाई ये आपके आने जाने का लीजिए 200 रुपया 300 रुपया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस पेशेंट के पैसा से काट करके और दिया जा रहा है तो इससे बचना बेहतर है, इससे बचना चाहिए, इसलिए कि ये नाहक लेना हुआ, नाहक पैसा लेना हुआ और इससे दूर रहना चाहिए आदमी को। बल्कि एक इंसानियत के नाते से हमें पेशेंट को, मरीज़ को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। एक इंसानियत, एक भाईचारगी, एक गांव के भाईचारगी के हिसाब किताब से। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल है कि कोई बहन भाई अगर सूद खा रहा है तो उससे नाता रिश्ता तोड़ दें या उसके साथ रिश्ता नाता जोड़े रहें? देखिए, उससे रिश्ता नाता आप जोड़े रहें, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको नसीहत करते रहें और उसको समझाते रहें कि अल्लाह और उसके रसूल ने सूद खाना हराम करार दिया है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इससे बचना नहायत ज़रूरी है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर वो सूद खोरी से नहीं बच रहे हैं तो उसको समझाने के तौर पर, ताज़ीरन सज़ा के तौर पर उससे ताल्लुकात तोड़ा जा सकता है, उससे दूर रहा जा सकता है। और उसके घर में खाना पीना, अगर आपको यकीन है कि ये पूरा इसका खाना पीना सूद के ही पैसा से है,
और सूदी कारोबार ही से है तो उसके यहाँ खाने पीने से भी वंचित रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, 041-590-239 ये नंबर खुल गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और सवालात पेश कर सकते हैं और जवाबात पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहम्मद सगीर आलम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि जिन और जादू का क्या हकीकत है, जवाब देकर शुक्रिया का मौका देंगे। मैं दुबई से। देखिए, जिन हकीकत में जिन है और जादू भी हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर बद लगना, नजर बद ये सच है और हक है। और किसी को भी नजर बद लग सकती है, किसी को भी नजर बद लग सकती है। एक बात याद रखें कि जिन ये शैतान ही है, बल्कि बहुत सारे उलमा ने कहा है कि जो शैतान में से मुसलमान हैं वो जिन्नात कहलाता है, और जो गैर है, जो काफिर है, गैर मुस्लिम है, उनको शैतान कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला आदमी मर गया है तो वो भूत बन गया है, वो जिन बन गया है। ये सब फालतू बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया, वहाँ वो भूत बन के आता है और गाड़ियों को उल्टा देता है, ये करता है, वो करता है। ये सब फालतू बातें, इसकी कोई हकीकत नहीं। जिन और शैतान ये आग से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया है। कोई इंसान मरने के बाद भूत और शैतान नहीं बनता है, और कोई जिन जो है किसी की भी सूरत इख्तियार कर सकता है अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो चूंकि मर गया कहीं पे कोई, तो शैतान बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, डराने के लिए, परेशान करने के लिए उसकी शक्ल इख्तियार करके वहाँ डरा सकता है। या किसी पर जिन लगता है, किसी पर भूत लगता है, तो वो कह सकता है कि मैं फला आदमी हूँ, फला आदमी हूँ, फला आदमी ने मार दिया है। इस पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब झगड़ा लगाने की बात और ये सब फालतू बातें हैं, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो जिन और शैतान की हकीकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह जिन पूरा एक सूरह ही बयान किया है, जिसमें जिन के वाक़यात के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात सुन करके वो लोग मुतासिर हुए। और ये भी बाज़ हदीसों में आया है कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा करके अपने गांव ले गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तलकीन की, वहाँ आपने हिदायत की बातें की, तो बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोबर और हड्डी से इस्तिंजा नहीं करो, इसलिए कि गोबर और हड्डी ज़ादुकुम मिनल जिन, ज़ाद इख्वानुकुम मिनल जिन, तुम्हारे जो जिन में जो भाई हैं उनके ये खाने पीने की चीज़ें हैं। तो अला कुल्ल हाल जिन और जादू ये दोनों की हकीकत है और इसको झुठलाना जायज़ नहीं है। बल्कि अगर कोई जिन को झुठला रहा है तो गोया कि कुरानी आयत को झुठला रहा है और उस पर कुफ्र का भी फतवा लग सकता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मुहतरम साथियों, बुजुर्गों, 041-590-239 ये खुल गया है और आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे सवालात कर सकते हैं। कुछ सवालात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से जी? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब हैं ठाड़ी से। हाँ जी जी, फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया वर्ष। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये थे ठाड़ी से मौलाना अब्दुल्ला साहब, बुजुर्ग आलिम दीन, और ज़माना से ठाड़ी में वो पढ़ा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनकी अहलिया बीमार हैं, उनकी शफा के लिए भी आप लोग दुआ करते रहें। बहुत ही नेक और बुजुर्ग इंसान हैं। इनका सवाल है कि जुमा के दिन बहुत सारे लोग बहुत पहले आ जाते हैं मस्जिद में, 10 बजे ही, 11 बजे ही, तो क्या वो लोग सुन्नत पढ़ेंगे, अलातुल सुन्नत पढ़ते रहेंगे? तो हाँ, वो लोग सबसे पहले तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी इस्तिताअत है
وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور جو شخص پہلے داخل ہوتا ہے مسجد میں جمعہ کے دن، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ تو جو کچھ سوالات آئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز پڑھتے وقت چھینک آ جائے تو الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مدلل جواب دیں، مہربانی ہوگی۔ ایک سائل جواباً عرض ہے، جواباً عرض ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز کی حالت میں چاہے فرض ہو یا نفل چھینک آئے تو راجح قول کے مطابق صرف اپنے آپ کو سناتے ہوئے آہستہ سے الحمدللہ کہے۔ یہی جمہور علماء کرام کا قول ہے، اور اسی کے قائل شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، نیز سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں کا کوئی شخص چھینکے تو اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6224۔ اس سے دلیل اس طرح سے لی گئی ہے کہ یہ حدیث عام ہے، جو نماز اور غیر نماز کے اوقات کو شامل ہے۔ نماز بھی اور غیر نماز دونوں وقت کو یہ شامل ہے۔ اس سے واضح بھی حدیث ایک آئی ہے، رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعطست، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آگے، میں نے چھینک کیا، فقلت الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو میں نے یہ کلمہ پڑھا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے چہرہ پھیرے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جب ہماری طرف گھومے تو آپ نے فرمایا من المتکلم فی الصلاۃ، کس نے گفتگو کی نماز میں؟ فلم یتکلم، تو کسی نے نہیں، کوئی نہیں کہا کہ میں نے۔ پھر دوسری بار پوچھا، کوئی نہیں بولا، پھر تیسری بار پوچھے، کوئی نہیں بولا، تو رفاعہ بن رافع نے کہا انا یا رسول اللہ، میں نے ایسے کلمات کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلت، کیسے کہا تم؟ پھر سے دہراؤ۔ تو قلت الحمدللہ، پھر پورے کلمات کو کہا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقد ابتدرها بضعۃ وثلاثون ملکا ایہم یسعد بها، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لگ بھگ 13 یا 17 فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور لپک رہے ہیں کہ کون اس کلمہ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، کون اس کو لے کر کے چڑھے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 404، ابو داؤد میں ہے 773، اور نسائی میں ہے 931۔ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور شیخ البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا چھینک آنے کے بعد جو یہ کلمات کہے رفاعہ نے، تو اس کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے فرشتے آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن بخاری شریف میں یہی روایت ہے تو اس میں چھینکنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ کلمات کہے گئے۔ چونکہ دونوں ہی حدیثیں صحیح اور حسن ہے، تو علماء کرام نے اس میں تطبیق نکالا ہے، مطابقت نکالا ہے کہ جب دونوں صحیح ہے تو کیسے ہم کہیں گے۔ تو کہا کہ ممکن ہے کہ رفاعہ کو رکوع سے سر ہی چھینک آئی ہو تب یہ کلمات انہوں نے کہے۔ علی کل حال ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو اپنے آپ کو صرف سناتے ہوئے الحمدللہ کہے، زور سے الحمدللہ نہ کہے تاکہ دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ سننے والا اس کے جواب میں نماز کی حالت میں یرحمک اللہ نہیں کہے گا، صرف چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اپنے سناتے ہوئے، اور جب سن لے کوئی جواب تو یرحمک اللہ
कहना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये नमाज के जो है मनाफी उमूर हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, 041 590 239 ये आपके लिए खुल गया है और आप इस पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे आप सवालात कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से कौन भाई? अच्छा, रघुनाथपुर से सलीम साहब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए सवाल। मुसल्ला से क्या मुराद है? अच्छा ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, हज बदल क्या है? हज बदल क्या है, ठीक है। और एक ही मुसल्ला पे। वालेकुम, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। ये थे रघुनाथपुर से मौलाना सलीम साहब। ये भी ज़माना से बीमार हैं। अल्लाह तबारक तआला इनको शिफाए कुल्लिया अता फरमाए, इनके मशाकिल को दूर करे। इनके दो सवालात आए। पहला सवाल है कि क्या एक ही मुसल्ला पर दो नमाजें हो सकती हैं? एक ही मुसल्ला पर दोबारा नमाज हो सकती है कि नहीं? और मुसल्ला से क्या मुराद? मुसल्ला से मुराद वो जगह जहाँ नमाज पढ़ी गई है, जहाँ नमाज पढ़ी गई है। अब अपने यहाँ तो कहते हैं कि मुसल्ला जो है उसमें जो चटाई है उसको मुसल्ला कहते हैं, उसको अरबी में सज्जादा कहते हैं। मुसल्ला उस जगह कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाए या जहाँ नमाज लोग पढ़ते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। इसीलिए जो कैंपों में, कंपनियों में, सऊदीया कतर में जो कंपनियों में जो छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई हैं, तो जिसमें जुमा नहीं कायम होता उसको मुसल्ला कहते हैं वहाँ, कि ये मुसल्ला है, यहाँ जुमा कायम नहीं, यहाँ नमाज टेम्पोररी तौर पर नमाज पढ़ते हैं। तो इनका जो अहम सवाल है वो ये कि एक ही जिस जगह नमाज हो गई है, क्या दोबारा उस जगह नमाज पढ़ी जा सकती है? इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। एक ही चटाई पर, एक ही मुसल्ला पर हम अगर जमात हो गई, जमात ख़त्म हो गया, 2 आदमी 3 आदमी हैं, तो उसी जगह पर, उसी मुसल्ला पर हम नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। और दोबारा जमात कायम करने की कई दलीलें हैं। एक दलील है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म करने के बाद बैठे हुए थे जमात के बाद, एक शख्स पीछे से आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं यतसद्दक़ अलैहि, कौन आदमी है जो उठ करके उनके साथ नमाज पढ़ेगा? तो एक सहाबी गालिबन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो उठ करके उनके साथ नमाज पढ़ा। तो जो सहाबी उठ करके नमाज पढ़े उनके लिए नफल हो गई और उस शख्स के लिए जो है क्या हो गया, फ़र्ज अदा हो गई और जमात का सवाब मिल जाएगा उस शख्स को। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि एक ही मस्जिद में दोबारा जमात कर सकते। लेकिन इस ज़माना में मौलाना सलीम साहब, बहुत अफसोस की बात है कि लोग होटलों में बैठे रहते हैं, गपास्टिंग में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। अजान हो गई, जमात ख़त्म हो गई और जब मोबाइल के काम से फुर्सत मिली या होटल में गपास्टिंग से फुर्सत मिली, तब दौड़ते हैं मस्जिद की तरफ और दोबारा नमाज पढ़ते। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और अफसोस की बात है। इसमें जान बूझ कर जमात छोड़ने की बात है, जो एक गुनाह का काम है, बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसलिए आदमी को काम तो होता रहेगा, पहले फ़र्ज नमाज पढ़े जमात के साथ, उसके बाद फिर दूसरे काम में मशगूल हो जाए। इनका दूसरा सवाल है कि हज बदल किसको कहते हैं और कैसे अदा किया जाएगा? देखिए, हज बदल उस हज को कहते हैं कि जो एक आदमी किसी दूसरे के बदले में करता है, किसी दूसरे के बदले में करता है। तो इसकी कई शर्तें हैं। सबसे बड़ी शर्त और पहली शर्त यह है कि जो आदमी हज बदल कर रहा है, करवा रहा नहीं, जो हज बदल कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने नफ्स का हज पहले किया हो, अपना फरीज़ा अदा कर दिया हो, चाहे बेटा हो या रिश्तेदार हो या गैर आदमी हो। अगर उसने अपना फरीज़ा अदा नहीं किया है, अपने नफ्स का हज नहीं किया है, तो उसका हज बदल सही नहीं होगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि जो हज बदल करवा रहा है वो माजूर हो, यानी मक्का तक पहुंचने का उसके पास पहुंचने की जिस्मानी ताकत न हो। माल तो है लेकिन जिस्मानी ताकत नहीं, माजूर है वो शख्स, या इतना बूढ़ा है
کہ وہ سواری پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، وہاں جا کر کے پھر طواف اور سعی اور جو دیگر جو حج کے ارکان ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو ایسے معذور بوڑھے یا اعضاء سے معذور انسان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات، اگر وہ زندہ ہے تب بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے حج عمرہ کر رہے ہیں، حج بدل کر رہے ہیں، عمرہ بدل کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، ماں کیسی ہے؟ تو وہ تندرست ہیں، گھومتے ٹہلتے ہیں، کماتے کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے حج بدل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ اس پر حج واجب ہوا ہے، اور جب حج ہی نہیں واجب ہوا تو آپ اس کی طرف سے کیا حج کریں گے، حج بدل کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو اس کی طرف سے ہم حج بدل یا عمرہ بدل کر سکتے ہیں مرے ہوئے کی طرف سے، اور جو لوگ کریں گے حج بدل، میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا حج یا اپنے نفس کا عمرہ پہلے کر لیا ہو۔ امید کہ مولانا کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، کچھ ادھر بھی نظر کرتے ہیں۔ ارمان بادشاہ، میں محمد ارمان ہرلاکھی سے نماز میں سورہ پڑھتے وقت بیچ میں سجدہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، رکوع یا سیدھے سجدہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے سوال اچھا ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ سجدہ، قرآن کے سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت جس پر سجدہ کرتے ہیں اگر وہ نماز کی حالت میں آ جائے تو اسی وقت وہ آیت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ سجدہ میں جانا چاہیے، رکوع نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ سجدہ میں جائے، اور پھر اٹھ کر کے اگر کچھ آیت باقی ہے تو آیت کو پڑھ لے اور تب رکوع کرے اور تب سجدہ کرے۔ تو پہلی آپ نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تلاوت ہے، وہ سجدہ تلاوت ہے وہ، اور بعد میں جو آپ نے رکوع سجدہ کیا وہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ تو جس وقت آپ سجدہ کرنے والی آیات کی تلاوت اگر آپ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کر لیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، اور آج سوال و جواب کا پروگرام ہے، اور دنوں میں آپ علماء کرام کا خطاب سماعت فرماتے ہیں 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک۔ آج کا نمبر ہمارا کھلا ہوا ہے 041590239، اس پر آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور فیس بک ID NID پر ہمیں آپ واچ کر سکتے ہیں اور سوالات بھی لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو واٹس ایپ سے آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے، ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں ہوتا اور میری ماں کہتی کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تو میں نماز چھوڑ کر کہتا کہ جی امی جان بولیے؟ اگر ایسی کوئی حدیث ہو تو برائے مہربانی بھیجنے کی زحمت کریں۔ سائل احسان اللہ بن نصیر احمد، جگولیا، روتھٹ، نیپال۔ جواباً عرض ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاش بسیار، یعنی حد سے زیادہ ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں ملی۔ ہاں البتہ نیٹ میں سوال و جواب کے کالم میں اس کا مختصر تذکرہ ملا جو شیخ سالم منجد حفظ اللہ کے اشراف میں چلتا ہے، میں اسی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ۔ سائل نے جو حدیث بیان کی ہے اردو ترجمہ، اس کا جو ہے عربی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا سا بیان کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لو کانت امی علی قید الحیات، اگر میری ماں زندہ ہوتی، وقیم صلاۃ العشاء وبدأت بالفاتحہ، اور عشاء کی نماز شروع ہو جاتی اور میں سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، وکانا
बाब बैती मुशरअन फनादतनी या बुनैया या मोहम्मद, और मेरे घर का दरवाज़ा खुला होता, मेरी माँ पुकारती कि मेरा बेटा, ऐ मेरे मोहम्मद, लतरक्तु सलाह वज़हबतु उलब्बी नदाहा, मैं नमाज छोड़ देता और उनकी पुकार पर लब्बैक कहता हाजिर हो जाता। शेख सालेह मुनज्जिद इस इबारत के बारे में फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ला नअलमु लिहाज़ल कलाम असला, कि हम इस कलाम की कोई असल नहीं पाते हैं, नहीं जानते, इसकी कोई असल नहीं है। वला नअरिफु अहदन मिन अहलिल इल्म रवाहु वला ज़करहु, और न मैं किसी अहले इल्म को जानता हूँ कि इसकी रिवायत की हो या इसका जिक्र किया हो। वह ज़ाहिर अन्नहु हदीसुन मौज़ू, और जाहिर है कि ये हदीस मन घड़त है, इसकी कोई असल नहीं है। फला यजूज़ु अन युनसब इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु मिनल कज़िब अलैहि, और जायज़ नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस बात की, इस इबारत को मंसूब किया जाए, इसलिए कि ये मुकम्मल तौर पर झूठ है, पूरे के पूरे झूठ है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तो बात हो गई कि ये इबारत, हदीस भी कहना गलत है, ये इबारत झूठी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सौंपी गई है, इसलिए इस तरह की इबारतों से आदमी को परहेज करना चाहिए। दूसरी बात कि यह इबारत कुरान मजीद के भी खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, सूरह अल-इसरा आयत नंबर 23। यानी पहले अल्लाह ताला की इबादत करो, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इबादत पहले करो अल्लाह की, उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। निस फरमाया अनिश्कुर ली व लिवालिदैक व इलैयल मसीर, सूरह लुक़मान आयत नंबर 14, कि पहले मेरा शुक्रिया अदा करो, फिर अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। इन दोनों आयतों से पता चला कि अगर आदमी फर्ज नमाज अदा कर रहा है और उसी हालत में वालिदैन ने या उन दोनों में से किसी ने पुकारा, तो फर्ज नमाज छोड़कर उनका जवाब देना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज को हल्की करके फौरन वालिदैन का जवाब दे, हल्की करके नमाज खत्म करे और जवाब दे। मसलन अगर चाहता है कि सब्ह इस्म रब्बिल आला की तिलावत करे कुरान में नमाज में, तो चाहिए कि इन्ना अताना पढ़ के जल्दी नमाज खत्म करके वालिद साहब के पास जाए या वालिदा के पास जाए कि भाई क्या बात है, क्यों आपने पुकारा, क्या मैं करूं, और तस्बीह या तकबीर कहकर उन, या नहीं तो यानी नमाज में, फर्ज नमाज में तो ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कह के उनको जानकारी दें कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको जानकारी दें कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये बातें इस हदीस से अखज़ की गई हैं। नबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी लअक़ूम फ़िस्सला उरीदु अन अतूल फ़ीहा, कि मैं नमाज में खड़ा होता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लंबी क़िराअत करूँ। फ़अस्मअु बुका अस्सबी, तो मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ। फ़अतजव्वज़ फ़ी सलाती, तो मैं नमाज को हल्की कर देता हूँ। कराहियत अन अशुक्क़ अला उम्मिही, इस चीज़ से कि इस कराहियत से, इस एहसास से कि उसकी माँ पर गिरा गुजरेगा, इसलिए कि उस ज़माने में औरतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा करती थी। हदीस बुखारी शरीफ हदीस नंबर 707। तो इससे पता ये चला कि नमाज को हल्की करके अपने वालिदैन की आवाज़ पर लब्बैक कहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर असनाए नमाज वालिदैन के साथ कोई हादसा पेश आ गया और वो मदद के लिए पुकारे, तो इस इज़्तिरारी हालत में, इज़्तिरारी इस ज़रूरी हालत हो गई, इस इज़्तिरारी हालत में नमाज छोड़कर उनकी मदद करना ज़रूरी है और फिर आप नमाज को दोहरा लें। हाँ, अगर ये फ़र्ज नमाज की बात थी, हाँ, अगर बंदा नफल नमाज पढ़ रहा है और उस हालत में वालिदैन ने पुकारा, तो ऐसी सूरत में नफल नमाज छोड़कर उनकी पुकार पर लब्बैक कहना ज़रूरी है, उनकी हाजत को पूरी करना ज़रूरी है। नमाज, नफल नमाज आप छोड़ दें, सजदा में हो, चाहे क़याम में हो, चाहे जहाँ भी हो, आप छोड़ दें और दौड़ करके अपने वालिदैन के पास जाएं। इसकी तौजीह क्या है? इसलिए कि नफल नमाज की तकमील वाजिब नहीं है, नफल नमाज की तकमील वाजिब नहीं है और वालिदैन की इताअत वाजिब है और उनकी नाफरमानी हराम है। तो एक मुस्तहब अमल की अदायगी में हराम चीज़ का इर्तिकाब करना कतन
जायज़ नहीं है। इसकी दलील बनी इसराइल के आबिद जुरैज का वाक़या है, जो मशहूर है कि वो नमाज में थे, उनके वालिदा ने पुकारा, 3 बार 4 बार पुकारा तो वो जवाब नहीं दिए। तो वो नफली नमाज में थे, फ़र्ज नमाज में नहीं थे, वो नफली नमाज पढ़ रहे थे, उनको वालिद को जवाब देना चाहिए। ये हदीस आपको मिलेगी बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3436 और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2550 में। इसके बारे में इमाम नववी ने बाब बांधा इस हदीस पर कि बाब तक़दीम बिर्रिल वालिदैन अला ततव्वु बिस्सलाह वगैरह। बाब बांधा है कि वालिदैन की इताअत करना मुक़द्दम है नफली नमाज पर मुक़द्दम है। नीज़ फरमाते हैं कि क़ाल उलमा क़ाल फ़ी हक़्क़िही इजाबतुहा लिअन्नहु कान फ़ी सलात नफ़्स। कहते हैं कि जुरैज को चाहिए था कि माँ की पुकार पर लब्बैक कहते, इसलिए कि वो नफली नमाज में थे। खुलासा कलाम यह कि मज़कूरा हदीस जो बयान की गई ऊपर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मुझको पुकारती तो मैं दौड़ता, ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है और कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। नीज़ अल्लाह ताला का हक, फ़र्ज और वालिदैन के हक में अगर तसादुम हो जाए, टकराव हो जाए, तो अल्लाह ताला के हक को मुक़द्दम करना ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मज़ीद तफसील के लिए देखना है तो देखें शरह रियाज़िस सालिहीन इब्न उसैमीन की 302 और फ़थुल बारी और मौसूआ फ़िक़हिया कुवैतिया वग़ैरह। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इन किताबों में इसके बारे में आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे मुहतरम साथियों, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर किसी भाई के पास और कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े हैं दरभंगा से अब्दुल्ला यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। तो अगर कोई सवालात हों तो आप लिख करके भेज सकते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, या 041 590 239 पर हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है वो ये कि नमाज शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है। नमाज शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कैसा है। जवाबन अर्ज है कि बाज़ हज़रात को देखा जाता है कि नमाज के लिए खड़े होते हैं तो तकबीर तहरीमा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना चाहिए, जैसा कि सुनन अबी दाऊद वगैरह में हदीस है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्ततिहुस सलात बित्तकबीर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की शुरुआत तकबीर से क्या करते थे। यह अबू दाऊद हदीस नंबर 783 और शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया। जब आप नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह के नाम से ही आप नमाज शुरू करते हैं। यहाँ अलग से बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत न ही उसकी कोई दलील है। एक औरत ने शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह से इसी किस्म का सवाल किया था। उन्होंने जवाब में कहा कि नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू की जाएगी, फिर दुआए सना पढ़ेंगे, उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तकबीर तहरीमा से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना बेअसल अमल है, इसकी कोई दलील नहीं है। ये तहक़ीक़ असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह जो एक यूपी के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी यह तहक़ीक़ है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे मुहतरम साथियों बुज़ुर्गों, वक्त मेरा बहुत कम है। 1-2 सवाल और है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, फिर आपसे मैं रुख़्सत हो जाऊँगा। फिर आइंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हफ्ता मुलाकात होगी। चौथा सवाल जो व्हाट्सएप पर आया हुआ है कि बिला वजह किसी जानदार चीज़ को काटना या जानदार को ज़बह करना कैसा है। मुदल्लल जवाब मतलूब है। बराए मेहरबानी अज़हद जवाब दें, यानी जल्दी जवाब दें। जवाबन अर्ज़ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी जानदार को बगैर ज़रूरत के, बगैर खाने के लिए ज़बह करे तो ऐसा करना हराम है। बहुत सारे लोगों को देखें, बच्चों लोगों को कि चिड़िया से
छोटी चिड़िया गोरैया से, फुद्दी से खेलते रहते हैं और ज़बह भी नहीं करते और मर जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जो है ज़बह करके खा लेना चाहिए। इसकी दलील क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन क़तल उस्फूरन बग़ैर हक़्क़िही सअलहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जिसने गोरैया को, फुद्दी को उसके हक़ के बगैर कत्ल कर दिया तो उसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत के बारे में पूछेगा अल्लाह ताला। क़ीला वमा हक़्क़ु या रसूलल्लाह, तो लोगों ने कहा अल्लाह उसका हक़ क्या है? तो फरमाया अन तज़बहू फ़तअकुलू, कि उसको ज़बह करो उसको खा लो। ये सुनन दारिमी में है, हदीस नंबर 2021 इसके मुहक्किक ने इसकी सनद को जय्यद कहा है। और सुनन नसाई हदीस नंबर 44-45 और अहादीस की दीगर किताबों में इस किस्म की हदीस आई हुई है जिसमें इस लफ्ज़ का इजाफा है। ये लफ्ज़ का इजाफा, क्या लफ्ज़ का इजाफा है? हक़्क़ुहा अन तज़बहा फ़तअकुलहा वला तक़्तरासहा फ़यरमी बिहा, उसका हक़ यह है कि उसको ज़बह करो और उसको खा लो और उसका गर्दन काट के फेंक मत दो, लेकिन ये इजाफा जो है ये ज़ईफ़ है। दूसरी दलील कि जानवर को ज़बह करके यूं ही फेंकना हराम है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तत्तखिज़ू शैयन फ़ीही रूह गर्ज़न, कि किसी ऐसी चीज़ को निशाना बनाने के लिए मत बांध कर रखो जिसमें अल्लाह ने रूह दी है। किसी चिड़िया को, किसी बकरी को, किसी बत्तख को बांध करके रखते हैं ताकि उस पर निशानाबाजी करे, तो ऐसा करना बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 1956। इसमें भी इशारा है कि बिला फ़ायदा जानवर को कत्ल नहीं करना चाहिए। एक और हदीस है कि किसी जानदार को निशाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुसबर अल बहायम, किसी जानदार को निशानाबाजी के लिए बांध करके नहीं रखना चाहिए। तो पता चला कि बिला वजह किसी जानवर को ज़बह करना और फेंक देना या लाना और उसको मरने के बाद फेंक देना, इस तरह करना जायज़ नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब्दुल्ला यादव साहब लिखते हैं कि शेख नवाफिल नमाज में अपने जवान में दुआ कर सकता हूँ? इसके बारे में मुफस्सल मैंने गुफ्तगू कर ली थी कि नफल नमाज में सजदे में अगर आपको मासूरत दुआ याद हैं तो आप मासूरत दुआएं कर सकते हैं, और अगर नहीं याद हैं तो आप अपनी ज़ुबान में भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन अल्फाज में अदब और एहतराम का होना पाया जाना ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल का जवाब मैं लूँगा, टाइम तकरीबन ख़त्म है। क्या चोरी करने वाले और चोरी का माल खरीदने वाले दोनों बराबर हैं? मुदल्लल जवाब दें। एक साइल जवाबन अर्ज़ है कि चोरी करना इस्लाम में एक संगीन जुर्म है, उसकी सज़ा इस्लाम में चंद शर्तों के साथ हाथ काटना बयान किया है। इसी तरह अगर यकीन हो, सुन लें, अगर यकीन हो या गालिब गुमान हो कि ये चोरी का माल है तो उसका खरीदना बिल्कुल हराम है। आज मोटरसाइकिल कम दाम में, साइकिल और भी कोई चीज़ चुरा के ले गया और बेच दिया गांव घर में, कौन हिंदू कौन मुस्लिम सब ले रहे हैं, लूट रहे हैं, सब माल ले रहे हैं, और चोर व चोरी का माल खरीदने वाले दोनों गुनाहगार हैं और सज़ा के मुस्तहिक हैं। इसके कई तौजीहात हैं। पहली, चोरी का माल खरीदना गोया के उस बुरे काम पर चोर का साथ देना है, ताउन करना। अल्लाह ताला फरमाता है व ताअवनु अल बिर्रि व तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह, के नेकी और तक़वा के कामों पर मदद करो और गुनाह और नाफरमानी के कामों पर मदद मत करो। तो चोरी का माल जो लोग खरीदते हैं गोया कि वो चोर का साथ दे रहे हैं। दूसरी तवजीह, चोरी का माल खरीदने में मुनकर पर इनकार तर्क करना लाजिम है। गलत चीज़ को आप इनकार नहीं करना लाजिम नहीं आता, जो इस हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, यानी जब गलत और मुनकर काम देखो तो हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोको। तीसरी वजह कि खरीद व फरोख्त की सेहत के लिए शर्त है कि जो माल बेच रहा है उस चीज़ का उस माल का वो मालिक हो, और चोरी का माल चोरी की मिल्कियत नहीं होता है। इसी वजह से ये बै फासिद है, ये खरीद व फरोख्त फासिद है, गलत है। इन तौजीहात से मालूम हुआ कि चोरी का माल खरीदना हराम है और खरीदने वाला भी गुनाहगार है। हाँ, अलबत्ता एक सूरत में चोरी का माल खरीदना जायज़ है,
جبکہ یہ نیت ہو کہ صاحب مال تک اس کا مال پہنچا دیا جائے، اور یہ اس وقت ہے جب خریدنے والا طاقت کے زور سے یا پولیس کو، کرائم برانچ کو کہہ کر کے پکڑوا نہیں سکتا ہے، طاقت کے زور سے چھین نہیں سکتا ہے، تو اس سے وہ مال خرید لے اور صاحب مال کو پہنچا دے اگر خدشہ نہ ہو فساد کا۔ نوٹ میرے بھائیو دوستو، آج کل معاشرہ میں یہ بیماری عام ہے جس سے احتراز کرنا ہر خریدنے والے مسلمان پر ضروری ہے۔ ہاں البتہ کسی مسلمان کے بیچنے والے مال و متاع پر شک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ صرف شک کی بنا پر یا بدگمانی کے بنا پر کسی مسلمان کے مال کو چوری کا مال قرار دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ امید کے سائل کو جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے لیے تفصیل دیکھیں مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 29 صفحہ 223 اور 276، فتاوی لجنہ دائمہ اس میں 13 جلد نمبر 13 اور 82-83، فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 19 91-92۔ اللہ عالم بالصواب۔ عبداللہ یادو لکھتے ہیں کہ شیخ نفل نماز میں سجدہ میں اپنے، ہم تو جواب دے دیا آپ کو کہ سجدہ کی حالت میں اپنی زبان میں اگر دعا معثورہ یاد نہیں ہے تو الفاظ کے احترام کے ساتھ اور الفاظ کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ میرا وقت اب ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے محنت کی اللہ اس کو قبول فرما لے، جو بھائی سوال کیے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کی تو مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ